Hello dear students, welcome to today's class session. Today we will describe few graphs related to kinematics or the motion in one dimension. Okay, so there are different cases where different graphs are involved, like velocity time graph, displacement time graph, and acceleration time graph. Okay, so we will describe briefly one by one. Okay. So let's start. So the first one is like this. Displacement in y direction and y axis, time in x axis, and graph is like this. Straight, that means parallel to x axis. So what does it represent? In that case, you can see if we put values like 0, 1 second, 2 second, 3 second, then 1 meter, 2 meter, 3 meter. Suppose this is 3 meter, 1, 2, 3, time in second, and displacement in meter. In that case, you can see the displacement is fixed at 3 meter. Okay, with passage of time, displacement is still 3 meter. So you can say that the body is at rest. हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है. अगर फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट में होगा तो बॉडी रेस्ट में रहेगा. क्लियर? सो सेकेंड ग्राफ विल बी लाइक दिस. ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है. तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ से? नाउ इफ वी पुट हियर एन एंगल थीटा, अगर यहाँ पे एक एंगल थीटा कर देते हैं और यहां से अगर हम tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं. ओके, लेट मी टेल यू, tan थीटा मीन्स स्लोप हियर. ओके, द स्लोप रिप्रेजेंट्स tan थीटा. सो tan थीटा को अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे. सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर मींस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम गिव्स यू वेलोसिटी. v means velocity. Okay, so slope of the graph displacement versus time gives us velocity. And here यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स स्लोप कांस्टेंट, दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट हियर. ओके, यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन A is change in velocity divided by time. Divided by time taken for this change. So change in velocity कितना है? अगर velocity constant रहेगा, सपोज 6 मीटर पर सेकेंड से एक कार ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे constant velocity 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे acceleration कितना होगा? 0 divided by t, तो ultimately acceleration will be 0. Clear? Third graph will be like this. This side displacement, this side time. Okay. Now the nature of the graph is curve is parabolic in nature. This is parabolic in shape. So we have three equation of motion. Among them, the third one is s is equal to ut plus half at square. Okay. In that case, if we put this as origin, so displacement is 0 at t is equals to 0. Okay, so if displacement is 0 at that point, then velocity at that point is 0, u is equals to 0. So this equation will looks like s is equal to half at square. This is the equation for this graph. So you can see s varies with t square. So this type of graph represents equation. This type of equation represents equation of parabola.
where y is equal to something constant x square. Equation of parabola, you can see s proportional to t square. Okay, so this type of graph represents parabola, and you can see the theta is increasing. Okay, theta, which is the angle, is increasing here. जो एंगल है यहाँ पे बढ़ रहा है धीरे धीरे. तो अगर थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज. वेलोसिटी इंक्रीज. अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है दैट मीन्स एक्सीलरेशन हो रहा है. देयर विल बी एक्सीलरेशन एंड द एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव. दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है. नेक्स्ट कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा. सपोज इस तरह से कुछ ग्राफ आ रहा है s वर्सेस t. तो इस तरह के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि थीटा इज डिक्रीजिंग. थीटा जो है कम हो रहा है. तो अगर थीटा कम हो रहा है तो वेलोसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज. तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी कम होता जा रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव हियर. ओके, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्सीलरेशन. नाउ वी विल डिस्कस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. So first one is like this, v versus t. Suppose this is the graph. You can see the velocity is fixed for a body. Suppose this point is 5 meter per second. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है विथ पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी is constant. So if velocity is constant, what will be the acceleration? Change in velocity नहीं हो रहा है, that means acceleration is zero. Acceleration is zero. Okay, यहाँ पे clear. So move on to the next graph. V versus t. Okay, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. हाँ, सपोज यहाँ पे हम थीटा एंगल पकड़ लेते हैं. तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल पकड़ते हैं तो यहाँ पे टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टेन थीटा विच इज स्लोप represents perpendicular divided by this, that means v velocity divided by time. यहाँ पे एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी. So change in time always represents acceleration. Change in velocity with change in time always represent acceleration. और यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है. And at that point you can see initial velocity is 0 at t is equal to 0. Initial velocity 0 था. That means body starts moving from rest. Rest से body move करना start किया. Velocity versus time. Here you can see velocity और time 0 पे coincide नहीं हो रहा है. That means origin से start नहीं हो रहा है. That means यहाँ पे कुछ initial velocity रहेगा. That means u naught is equal to 0. Not is equal to 0. We have first equation of motion which is v is equal to u plus at, and this is the graph for this equation. v is equal to u plus at where u is not equals to 0. and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ एंगल ड्रॉ करते हैं तो थीटा एंगल आएगा and which will gives you acceleration in positive direction. That means positive acceleration यहाँ पे होगा. नेक्स्ट ग्राफ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, t वर्सेस v. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी पहले कुछ ज्यादा था, 0. फर्स्ट 0 टाइम में कुछ वेलोसिटी था, उसके बाद वेलोसिटी कम होता जा रहा है.
अब देख सकते हैं इस पॉइंट में सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 इतना मीटर पर सेकेंड अगर लिखते थे और टाइम सेकेंड में, तो आप देख सकते हैं कि पहले था 4 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 3, उसके बाद इस पॉइंट में आएगा 2, उसके बाद इस पॉइंट में 1 मीटर पर सेकेंड। ये ग्रेजुअली वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पे आएगा डीएक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन, ओके, या फिर रिटार्डेशन भी हम बोल सकते हैं। तो द इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ विल बी v is equal to u minus at because acceleration will be negative here. Okay, graph will be like this. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैराबोलिक शेप का कुछ कार्व। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर थीटा ड्रॉ करेंगे तो थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, कुछ कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वे में बढ़ रहा है, बट देयर इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली आएगा, तो देयर विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट ग्राफ विल बी लाइक दिस, वेलोसिटी टाइम, ओके। यहां पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहां पे थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा यहां पे कम होता जा रहा है एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म motion and there will be negative acceleration, that means acceleration decrease कर रहा है, decreasing, acceleration is decreasing, acceleration धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ओके, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा था तो जिसके कारण पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया, और यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अल्टीमेटली इट विल कम अप टू रेस्ट में चला आएगा। दैट मीन्स कुछ टाइम बाद सपोज यहाँ पे 5 सेकेंड में वेलोसिटी हो जाएगा 0, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कुछ था इनिशियली वेलोसिटी कुछ था से 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेकेंड में ये रेस्ट में आ गया, दैट मीन्स एक्सेलरेशन डिक्रीज। नेक्स्ट ग्राफ्स विल बी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। Acceleration versus time graph. So first graph, suppose like this. यहाँ पे acceleration and time in this direction. यहाँ पे slope कितना है? Slope is equals to 0. Angle ही नहीं बन रहा है. So if slope is 0, that means acceleration यहाँ पे constant है. Acceleration is constant. Next graph will be like this. सपोज एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देयर इज एंगल स्लोप थीटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक। जो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ओके, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है and it is a positive acceleration, सेम अगर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं थर्ड ग्राफ, this represents number 3, this represents negative acceleration because theta is decreasing,
थीटा इज डिक्रीजिंग हियर, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ओके, इसीलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है. नाउ वी विल ड्रॉ फ्यू ग्राफ्स हियर एंड लेट्स सी व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स. वी टी, ठीक है. यहाँ पे कुछ ग्राफ इस तरफ से आ गया ऐसे स्ट्रेट पैरेलल टू वाई एक्सिस. ना आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी इनिशियली जीरो टाइम में वेलोसिटी कुछ था, यहां से वेलोसिटी कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहां पे वेलोसिटी आके जीरो हो गया कुछ टाइम में. सपोज दिस इज 5 सेकेंड एंड द वेलोसिटी इज जीरो हियर. तो नेक्स्ट ग्राफ में यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस. दैट मींस एट दैट टाइम 5 सेकेंड पे डिफरेंट वेलोसिटी दिखाई दे रहा है या फिर इनफाइनाइट वेलोसिटी हम देख सकते हैं. सो एक ही टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कैसे दिखाई देता है. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग ग्राफ. यहाँ पे सेकेंड और एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कुछ इस तरह से ग्राफ आपको दिया हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कोई भी टाइम यहाँ पे पकड़ सकते हैं. इस टाइम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू टाइम्स आर गिवन, सॉरी टू वेलोसिटीज v1 एंड v2 एट द सेम टाइम. सपोज दिस इज t नॉट टाइम पे दो वेलोसिटी दिखाई दे रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल? Hence the graph is not possible. क्लियर? एक ही टाइम में दो वेलोसिटी नहीं हो सकता किसी भी बॉडी का. सो hence this type of graphs are not possible. Suppose यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ दिया है VT ग्राफ में, कुछ ऐसे यहाँ पे स्ट्रेटन दिया है. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओके. अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे बंद कर देते हैं तो यहाँ पे क्लोज्ड फिगर आता है, ओके. यहाँ पे नाम दे देता हूं ABC. तो यहाँ पे क्लोज्ड फिगर का कुछ एरिया आता है, ओके. तो अगर हम ये एरिया का वैल्यू निकालते हैं OABC which will be equals to OA multiplied by OC, OA multiplied by OC, because this represents a rectangle. सो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया. तो यहाँ पे OA क्या है? OA मीन्स टाइम, टाइम मल्टीप्लाइड बाय OC मीन्स वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इंटू टाइम रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व के अंदर कोई भी मैंने एरिया, कर्व के अंदर जो एरिया है वो एरिया निकाल लिया, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. That will gives you the displacement, the value of displacement. तो एरिया का मतलब क्या है? ये एरिया हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओके. अंडर ग्राफ VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व के अंदर जो एरिया आएगा उससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. सिमिलरली एरिया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. सपोज सेम पकड़ लेते हैं, तो OABC. तो यहाँ पे एरिया OABC will be equals to acceleration into time. So acceleration into time हो गया change in velocity. Acceleration हो रहा है तो obviously change in velocity आएगा. That means area under graph, area under curve in acceleration versus time graph represents change in velocity. So students, I think these graphs are very much clearer to you. So if there is any further queries or any confusion regarding this topic, you can comment below. Thank you.